Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video, I'm going to discuss about bias, what is variance, what is underfitting, what is overfitting. बेसिकली हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारा मॉडल अंडरफिटेड है, ओवरफिटेड है और मतलब हम कैसे पता लगाते हैं कि हमारा मॉडल है जो हमने बनाया, क्रिएट किया है, ठीक है ना? वो रिग्रेशन से या क्लासिफिकेशन से कैसे भी क्रिएट किया हो वो ठीक है कि नहीं, ओवर फिटेड तो नहीं है। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस कहाँ हाई होता है, कहाँ लो होता है, बायस क्या होता है, बायस कहाँ हाई होता है, कहाँ लो होता है, ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सो इसके लिए सबसे पहले तो मैं एक चीज बता दूं आपको। जब भी मैं बायस बोलूंगी तो उसका मतलब मैं ट्रेनिंग डेटा की बात कर रही हूँ। जब भी मैं बायस बोलूंगी then I'm talking about what? ट्रेनिंग डेटा। और जब भी मैं वेरिएंस बोलूंगी देन आई एम टॉकिंग अबाउट टेस्ट डेटा। ओके, ऑल राइट। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू थ्री ग्राफ्स here like this. So these, so we have, आज के वीडियो में हम let's एक बहुत ही consider a इम्पोर्टेंट regression टॉपिक problem. Like we have solved a question. For example, let's take the previous example where we have given the weight and we have to predict the height. Got it. So then, like similar to that, also suppose like we have solved that problem using regression, and these are the three best fit line which we have drawn for those our actual points. So in the first case, you can see that the best fit line is very far from the actual points, and in the third scenario, you can see that the best fit line is like completely जिसे हम covering लोग all the बोलते actual हैं points. बायस एंड And in the वेरिएंस। second case, it is not too far, and it is not too far and not too close. It is just at the accurate distance. Got it? So I think you have got the view of the graphs. Now I'll tell you about what I'm trying to explain you. So here, when the like when the So these like white cross points are my actual points. And this line is my regression line bias, and this yellow line is my regression line. Like I can say that this is my best fit line. So here, so here the distance between in the first scenario, the distance between the actual point and the regression line is very much high, right? So in this case, what will happen? In this case, our error will be also high. In this case, our error will be also high. Since what is error? What was the error? See, there are two kind of error: training error and testing error. In the case of regression, also. So जो training point से best fit line का distance होता है, उसका जो sum of residual वो उसका जब हम sum करते हैं तो एक error होता है, उसको ट्रेनिंग एरर बोलते हैं। ठीक है, और इंडिविजुअली भी एक रेसिडुअल एरर नाम की टर्म है, यानी कि हम एक्चुअल पॉइंट से बेस्ट फिट लाइन का जो डिस्टेंस देखूंगी उसको रेसिडुअल एरर बोलते हैं। सो इसमें क्या है, इसमें मेरा ट्रेनिंग एरर बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा एक्चुअल पॉइंट का बेस्ट फिट लाइन से, राइट? तो अगर मेरा डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरा एरर बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि मॉडल जो है वो बायस हो सकता है। तो इन द फर्स्ट सिनेरियो, इन द फर्स्ट केस, माय बायस इज वेरी हाई। Got it. And bias is very high. And what can be the variance? Initially, like in the start of this video, I've told you when I'm talking about bias, then I'm talking about training data. And when I'm talking about variance, then I'm talking about testing data. So here, what will happen is, so here the training data can be so close to this line and so far to this line also, right? Like the training points can be like
training data can be so close to I this have line a and can be story so about a far to talking this line. samosa. Can Can happen Gemini both. make it into a Like movie? कि मेरे पास ये एक्स एंड वाई वेरिएबल है। just a second. Yeah, so here the training data can be हाँ भी हो सकता very है, close to ठीक है। this line or अब can be टेस्ट very डेटा के far to this line. If they are close to this line, then my variance, then the error would be low. Error would be low means variance would be low. So the variance can be low also, and the variance can be high also. If the training point is like these red cross are very far away, then the error would be obviously be high. So the variance will be high. So in the first scenario, my bias is high, and the variance can be low or high. Can be both. मतलब या तो लो भी हो सकता है हाई भी हो सकता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं अंडर फिटिंग। मतलब अंडर फिटिंग के केस में मेरा क्या होता है, मेरा बायस बहुत हाई होता है और मेरा वेरिएंस या तो लो हो सकता है हाई हो सकता है। मतलब अंडर फिटिंग मतलब बिल्कुल ही पॉइंट को फिट ही नहीं कर रही है लाइन, बहुत ज्यादा ही डिस्टेंस है। तो ठीक है, ये तो मेरा हो गया अंडर फिटिंग का सिनेरियो। सो बेसिकली व्हेन द ट्रेनिंग एरर इज वेरी हाई, देन इट मींस दैट द मॉडल इज अंडर फिटेड एंड हाईली बायस्ड। एंड बायस्ड also, yeah, that's I told you, refers to the training data, while variance always refers to the testing data. Got it? Let me tell you the ideal condition also for each and every model or for each and every algorithm which we create. हम जो भी algorithm बनाए, जो भी मॉडल बनाए, हमारी आइडियल कंडीशन ये होनी चाहिए कि we want a model which has the less training error and less testing error, यानी कि लो bias और लो variance हमको दोनों चाहिए बेसिकली। गॉट इट। तो ये मेरी होती है आइडियल कंडीशन। और जो ये मेरा थर्ड वाला केस है, इसमें क्या है, इसमें मेरे जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं वो मेरी लाइन को पूरा ही कवर कर रहे हैं, तो इसमें मेरा ट्रेनिंग एरर तो बिल्कुल जीरो होगा। तो यानी कि एरर जीरो होगा तो नहीं कि मेरा बायस तो कम होगा। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में ना मेरा वेरिएंस बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो क्या कहते हैं बिल्कुल ही बेस्ट एक्चुअल पॉइंट पे आ गए। तो ओवर फिटिंग के केस में क्या होता है, ओवर फिटिंग के केस में मेरा ट्रेनिंग एरर टेस्टिंग एरर ज्यादा होता है, मतलब वेरिएंस ज्यादा होता है और बायस कम होता है। बेस्ट मॉडल है ये जो बीच वाला है, बिकॉज इसमें ना ही मेरी बेस्ट फिट लाइन पूरा पॉइंट्स को कवर करे, ना ही बहुत ज्यादा पास है, ना ही बहुत ज्यादा दूर है। तो दिस इज द बेस्ट केस फॉर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द सेकंड केस, फर्स्ट केस में अंडर फिटिंग हो रही है, थर्ड केस में ओवर फिटिंग हो रही है। अंडर फिटिंग के केस में क्या होता है, अंडर फिटिंग के केस में मेरा ट्रेनिंग एरर कम होता है, ट्रेनिंग एरर कम होता है तो मतलब लो बायस होता है, पर वेरिएंस हाई या लो हो सकता है। और ओवर फिटिंग के केस में ओवर फिटिंग के केस में क्या होता है, ओवर फिटिंग के केस में ओवर फिटिंग के केस में मेरा बायस भाई मेरा ट्रेनिंग एरर तो कम ही होगा, क्योंकि बिल्कुल ही जीरो आएगा, तो ट्रेनिंग एरर तो मेरा कम होता है, बायस इसमें कम होता है। पर इसमें क्या कहते हैं, वेरिएंस जो है वो मेरा बहुत ज्यादा होता है। मतलब फर्स्ट वाले केस में मेरा पॉइंट बहुत ज्यादा दूर है तो वो हाई बायस है। इन फर्स्ट केस में हाई बायस लो वेरिएंस, थर्ड केस में लो बायस हाई वेरिएंस। गॉट इट। सो ये दिक्कत होती है हमारे साथ। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग गाइस। नाउ लेट मी शो यू समथिंग एल्स आल्सो। नाउ यू टेल मी दिस, किस केस में मैं कहूंगी कि ओवर फिटिंग की प्रॉब्लम है या अंडर फिटिंग की प्रॉब्लम है या जनरलाइज मॉडल है। तो देखो, इसमें फर्स्ट केस में मेरा ट्रेनिंग एरर बहुत कम है, ट्रेनिंग एरर बहुत कम है तो मतलब कि बायस कम है, और टेस्टिंग एरर बहुत ज्यादा है। ट्रेनिंग एरर कम है और टेस्टिंग एरर बहुत ज्यादा है। तो ये कौन सा केस हो गया, ओवर फिटिंग का। ऐसे सेकंड वाला केस, इसमें ट्रेनिंग एरर जो है मेरा 25% है, टेस्टिंग एरर मेरा 26% है। ठीक है, तो इसमें क्या है मेरा,
इसमें मेरा ट्रेनिंग एरर बहुत ज्यादा है, और मैं ट्रेनिंग एरर बहुत ज्यादा है, मतलब हाई बायस्ड है, और क्या कहते हैं, टेस्टिंग एरर भी ज्यादा है। तो वही एक अंडर फिटिंग का केस हो गया ना, मैंने यही तो बताया था, अंडर फिटिंग के केस में बायस बहुत हाई होता है, वेरिएंस कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो सेकंड केस जो है वो मेरा अंडर फिटिंग है। थर्ड वाले के केस में मेरा ट्रेनिंग एरर भी ज्यादा कम है, पर एक वो क्या कहते हैं कम है, और टेस्टिंग एरर मतलब इक्वल से है और बहुत कम ही हो गए। तो ये मेरा सबसे बेस्ट मॉडल है, मॉडल 2 का जनरलाइज मॉडल इन दिस केस। So that is all for today, guys. So in this video, we have learned the concept of overfitting, underfitting, and what is the ideal condition, and what is the concept of bias and variance also. So now we'll meet in another video with another session. Until then, goodbye, and please do hit the like button. Please share the video as much as possible, and please do subscribe to my channel. Thanks.